से निकाले जाने पर राहुल गांधी पर भड़की नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा, जमीनी हकीकत से दूर राहुल गांधी पंजाब नहीं जीत पाएंगे। That's why you lost Punjab. You lost Punjab because of that. You had the CM who's now facing ED. नवजोत कौर सिद्धू का आरोप, राहुल के करीबी टिकट बेचने में व्यस्त। That your party is being destroyed in Punjab. They've already sold the tickets. What tickets are you talking about? The tickets are already sold. So you look at people who are working under you. पीएम मोदी की तारीफ में बोली नवजोत कौर सिद्धू, कहा पीएम मोदी आध्यात्मिक हैं। पहले शशि थरूर, उसके बाद मणिशंकर अय्यर और अब पंजाब से कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी पर अपनी भड़ास निकाली है। और राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खोखला कर रहे हैं, ये भी सीधे आरोप राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस की पोल खोली है। दरअसल पार्टी से निकाले जाने के बाद नवजोत कौर सिद्धू का ये रिएक्शन सामने आया है, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक दावा किया कि राहुल गांधी के करीबी लोग ही चुनाव में टिकट बेचने में व्यस्त हैं। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी नवजोत कौर सिद्धू नजर आई। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि राहुल गांधी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के करीबी लोग ही चुनाव में टिकट बेचने में व्यस्त हैं। कोयंबटूर में न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने ये तमाम दावे किए और कहा कि राहुल गांधी अच्छी बातें करते हैं, वो समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं, जो कहते हैं, वो बहुत अलग है। क्या कहा उन्होंने, क्या आरोप सीधे तौर पर राहुल गांधी पर लगाए, जरा सुनिए। राहुल गांधी, he talks good, he talks sense, but what he does and what he says is very, very different. For the past 8 months, I have been asking for a time to tell him that your people, your president or your person appointed in Punjab is not doing justice to Punjab. He's killing Congress in Punjab. I'm telling you, I'm just asking you for a seating to tell you that your party is being destroyed in Punjab. They've already sold the tickets. What tickets are you talking about? The tickets are already sold. So you look at people who are working under you. And if you're not aware of what's happening beneath you, then I'm sorry. You don't deserve that chair. You are responsible for what you are doing. You know, so if you don't have time for me, I'm an educated person. I'm a gynecologist. I was earning 40 lakhs a month. My husband earns nearly 25 lakhs a day. So leaving that and coming to 1.5 lakhs of salary, because we don't go outside the salary. Okay. So we have nothing. We have no businesses to do. I'm a doctor. He's a law officer and a probationary officer in the bank and a cricketer and a commentator and a TV actor. We left everything for Punjab. And you promised us a deputy CM post with 7 departments and me as a MP. And you gave us nothing. You gave us local bodies and tourism, and you wanted them to be run by according to the CM. You know, giving all the tenders to all the other people who just want it. And then what is there? Why are you talking against corruption when your own people are corrupt? And you're liking those corrupt people around you. The people surrounding you are totally corrupt. So how can you tell? And you have no time for the honest people who want to come and tell you that, okay, this is going wrong. You're not going to win Punjab because of what's happening. They're fooling you. And if you don't want to meet us, then okay, cool. I don't want to live in that party where I can't communicate with my leader. उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पिछले 8 महीनों में मैं लगातार उनसे मिलने का वक्त मांग रही हूं, ये बताने के लिए कि आखिर आपके लोग, आपके प्रेसिडेंट या पंजाब में नियुक्त आपका व्यक्ति किस तरीके से पंजाब के साथ न्याय नहीं कर रहा है। वो पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर रहा है, लेकिन आप वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करना, आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार
जिम्मेदार हैं। ये सीधे राहुल गांधी पर जो है नवजोत कौर सिद्धू भड़की है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की इस दौरान और कहा कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच की तुलना करते हुए कि आप पीएम मोदी पर उंगली नहीं उठा सकते। क्या उनके पास एक पैसा है? क्या उनके खिलाफ कोई फाइल है? उनके खिलाफ कुछ भी आपके पास नहीं है। सीधे तौर पर राहुल गांधी को जवाब एक तरीके से दिया कि राहुल गांधी आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन क्या उनके पास इस बात का सबूत है? क्या कहा नवजोत कौर सिद्धू ने, सुनिए। Yeah, probably it's been gifted to him. He has not worked his way through the lower steps to actually be on the lower ground. You know, I think it's very important to be grounded. What's happening at ground zero is very, very important for anyone. If you're not working, I was MLA, I was working at the ground level. I didn't need anyone to tell me what's happening in my area. I knew it because I was walking 5 hours a day in my area. So you have to be in touch with the ground reality to know. You can't be living in a dream world where you know nothing and you are just trying to listen to people who get together, form groups and come and tell you that, okay, no, this Navjot family is very, just because we are honest and we go away. They don't listen to anyone. Arey, we don't listen to you're doing corruption. We are listening to everyone. But you come only for this, that you give us tenders, that you clear this file. How can we do it? We've been honest through our life. We've just gained this confidence of the people of Punjab, of the people of India, by being honest and struggling, financially because of that. There's only one, I think probably one such local bodies minister who actually went bankrupt during his ministry. हालांकि वो इस बात से भी नाराज है कि उन्हें भरोसा दिया गया था कि पंजाब में उन्हें एक अच्छा पद दिया जाएगा, अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि हमने पंजाब के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आपने हमें 7 डिपार्टमेंट के साथ एक डिप्टी सीएम का पद और मुझे एक एमपी बनाने का वादा किया, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं दिया। आपने हमें लोकल बॉडी और टूरिज्म दिया और आप चाहते थे कि उन्हें सीएम के हिसाब से चलाया जाए। आप करप्शन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं जब आपके अपने लोग ही करप्ट हैं? ये बात कहना भी नवजोत कौर सिद्धू नहीं भूली। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और कहा कि पीएम मोदी पर आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शायद ये तोहफे में मिला है, उन्होंने असल में जमीन पर आने के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है ये किसी के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको जानने के लिए जमीनी हकीकत से जुड़े रहना होगा। सपनों की दुनिया में आप नहीं जी सकते। हम पूरी जिंदगी ईमानदार रहे हैं। पंजाब के लोगों, भारत के लोगों का भरोसा जीता है ईमानदार रहकर, और इसी वजह से पैसे की तंगी से जूझकर आप पीएम मोदी पर उंगली उठा सकते हैं, उन्हें छूने की कोशिश करें। क्या उनके पास एक पैसा है? क्या उनके खिलाफ कोई फाइल है? उन्हें पर्सनली छूने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये साफ तौर पर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा। You can point a finger at Modi. Try to touch him. Does he have a penny? Does he have a file against him? Try touching him personally. There is nothing against him. Surrounding people, they do what they want to do, because in politics you can't survive. You need everyone around. You need people, you need to be in contact with people who will actually do businesses. And you are working for, and you go to the poorer section, you go to UP. The yogi. That's coming from the people. They're singing bhajans of yogi. Why? Because they're being provided with something. You can't force anyone to say something for you. When people talk, you are there actually in front of the people, and they decide this is the one. So we have worked professionally. In television, Navjot is what he is. He's being paid and considered good according to what capacity he has, and what talent he has. Hair talent is not recognized at all. This is the only profession where, okay, you are honest, you are truthful, you are upright, okay, go to hell. No one needs you. You just need a corrupt person who allows corruption. And yes, you will make 5,000 CR, all of you, and go to hell with Punjab. That's why you lost Punjab. You lost Punjab because of that. You had the CM who's now facing ED. So what will 10,000 CR or 20,000 CR do to him?
He's after all now 85 years old. You have to leave, no? And the only two things that will go with you, that leaders, that preachers, that your gurus have taught you, is selfless service and the time spent in meditation. यानी यहाँ पर राहुल गांधी पर बरसना और पीएम मोदी की तारीफ करना आखिर ये किस ओर इशारा करता है? क्या नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी में शामिल होने वाली है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले वक्त में पंजाब में चुनाव होगा, तो ऐसे में बीजेपी को वहां पर अपना दमखम दिखाने के लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि नेतृत्व चाहिए, लोग चाहिए, और उन्हें क्या एकजुट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये भी सवाल है। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू को हाल ही में कांग्रेस ने दरअसल पार्टी से बाहर किया है। आरोप उनके खिलाफ ये थे कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी उन्होंने की। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के भीतर सीएम सीट और टिकट के बदले करोड़ों रुपए की डील होने का आरोप लगाया था। अब पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने सीधे राहुल गांधी को ही आड़े हाथों लिया है और ये तमाम बातें कही हैं जो कि आपने सुनी। लेकिन अब क्योंकि पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़ चुके हैं और अब सवाल यही है कि क्या सिद्धू दंपति जो हैं, यानी नवजोत कौर सिद्धू और उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू, क्या बीजेपी में शामिल होंगे? क्या संभावित घर वापसी जो है उनकी हो सकती है? इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। शीर्ष नेतृत्व ने वापसी का खाका लगभग तैयार कर लिया है, खबर ये भी है, और इस महीने के आखिर तक वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आई है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।